Morning student, myself Surendra Yadav as a physics teacher. Dear students, today I have come to bring a very important topic which is related to physics standard 12 chapter number 1. Topic name is continuous charge distribution. So today I will teach you what is continuous charge distributions. So see here, topic is continuous charge distribution. Okay, and then how we can explain that? If we want to find the continuous charge distribution, it is compulsory we will use the charge density. Okay, and before you have get the electric force and the electric field. Okay, that time we have used the superposition principle, Coulomb's law. Okay, these topics you have studied before. So today I will tell you what is a continuous charge distribution. So we use the concept of charge density to describe the system of continuous charge distribution. कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें अगर एक्सप्लेन करना है या बताना है तो हमें उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा? चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। और देयर आर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं वो? सी हियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द charge distribution. First is linear charge distribution, second is surface charge distribution, and third is volume charge distribution. So one by one I will teach you what is linear charge distribution, what is surface charge distribution, and what is volume charge distribution. So first topic is linear charge distribution. We can say we want to determine the force acting on the charge Q situated at the point P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये बताने से पहले हमें एक फिगर बनाना होगा। ड्रा करिए फिगर। सपोज दैट ये एक्स वाई एंड जेड 3D फिगर है। ये हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। क्लियर? सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कोई क्या है, लाइन है, चार्ज इस पे है, प्लस चार्ज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Okay, suppose that distance between O to this line is R dash vector. Okay, and whole line's length is L. Suppose that we will take very minute displacement distance length we will take. So suppose that this is the DL, and one more point we want to take. This is the P point, and P point have a charge Q, and then distance between here to here, O to P equal to R vector. Okay, and if we can find the, suppose that we will take to DL point have a charge, we will say, so this is suppose that DQ. This point have a DQ charge. Okay, now if we want to find the electric force on point P through the Q charge, so what we can write? This force we want to find. So this position will be what? R vector minus R1 dash R dash vector. Okay. So here I took, we want to determine the force acting on the charge Q situated at the P point. So P point have a Q charge, and suppose DL have a DQ charge, and whole wire length is the plus charge means L and charge is Q, DQ. If we want to find the charge density, तो how we can say? तो first we want to say कि what is linear charge density? क्या है? What do you know about the linear charge density? तो what we can say that amount of charge per unit length
amount of charge per unit length of line is called linear charge density. क्या कह सकते हैं फिर से, amount of charge, जो हमारे पास चार्ज का अमाउंट है उसकी जो लेंथ है, लाइन ऑफ द लेंथ पर यूनिट 1 mm लेते हैं, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल होता है लेमडा. क्लियर हुआ? तो अगर वी वांट टू फाइंड द लेमडा चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो व्हाट वी कैन राइट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द लाइन, चार्ज लाइन. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज. सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं चार्ज क्यू है, पूरे संपूर्ण यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है. तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई, क्या लिखें, क्यू बाई एल. क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल. सपोज दैट इस वायर की लेंथ स्मॉल एल है और जो चार्ज उस पे है वो कैपिटल क्यू है, और अगर माइन्यूट डीएल अगर यहाँ पॉइंट हम लेते हैं लेंथ वायर की और उस पे चार्ज बताते हैं तो डी क्यू चार्ज है. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आई थिंक. अगर हम इसकी वैल्यूज को निकालना चाहें, अगर हमें इसके फार्मूले को निकालना है तो कैसे बताएंगे, हाउ वी विल फाइंड द यूनिट ऑफ द चार्ज डेंसिटी. यूनिट ऑफ द चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल. ओके, तो राइट डाउन फर्स्ट यू फाइंड द यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी. तो यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी lambda equal to q by l. So do you know what is value of, what is unit of q? Q is the coulomb, and coulomb is denoted by capital C, and length is unit is meter. So what we can write, the unit of this is capital C m की power -1. You will not write in small letter, otherwise this will wrong. Capital letter you will write, so this will be coulomb. अगर if you write in small letter, this will in centimeter, this will wrong. Okay, तो what is unit of that? तो unit of lambda equal to, unit of lambda equal to C coulomb inverse, coulomb meter inverse. Okay, if we want to find the, जैसे नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, तो हाउ विल फाइंड. तो डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेते हैं. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, एमसीक्यू नीट और ऐसे के लिए, नीट एंड जेई के लिए. ठीक है, जेई आईआईटी जेई के लिए ये सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं. तो अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेमडा. लेमडा क्या है, क्या है लेमडा, यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी, नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी. यहाँ क्या लिखेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है. तो लेमडा अगर हम डायमेंशनल निकाल रहे हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्यू फार्मूला वही है, क्यू, क्यू को हम ब्रैकेट लगाएंगे तो डायमेंशनल निकालना है, और एल क्या है, लेंथ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे. अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, क्यू का वैल्यू क्या होती है, अभी हम इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में मैं आपको समझाया था. अब आप बताएंगे कि क्यू कैसे निकाले. क्यू क्या है, आवेश है जिसको हम चार्ज बोलते हैं. तो जबकि करंट का फार्मूला पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. ठीक है, ये तो पढ़ा है ना, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, हाँ या ना. अच्छा यस, तो यहाँ पे हम क्या बोल लिखेंगे, Q इक्वल टू आई टी. हो गया. अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, A, और इसको लिखेंगे T. तो Q की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AT. ये एट मत पढ़ना, एम्पियर एंड टाइम होता है. ठीक है, अब L का क्या होता है, L आप यहाँ पे लिख के देखिए क्या होगा, AT. ये किसका हो गया, आवेश का, जिसको हम बोलते हैं चार्ज. चार्ज क्यू की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एल. तो हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेमडा इक्वल टू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेमडा, देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेमडा इक्वल टू, अब लिख दीजिए क्या आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एल की पावर -1. तो ये डायमेंशनल फार्मूला है. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और हमें याद नहीं होता है। क्या होता है? याद नहीं होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे? फार्मूले से निकालेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीजें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो नॉलेज लेवल के क्वेश्चंस होते हैं नीट, आईआईटी में और एमसीक्यू में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बेस पे होते हैं। फार्मूला लगा दो, आंसर। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ATL की पावर -1। अब हम बताएंगे लैम्डा की वैल्यूज। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर DQ अगर उसमें चार्ज है और DL वैल्यूज है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम लिखेंगे, सपोज दैट आपने लैम्डा इक्वल टू यहाँ लिखा ही है कि क्यू बाई होता है। अगर हम इस बाइनोड चार्ज के लिए और माइनोड डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि लैम्डा इज कांस्टेंट फॉर होल सिस्टम, मतलब इस पूरे लेंथ के लिए और इस प्रोसेस के लिए भी लैम्डा कांस्टेंट है, फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? DQ लिख सकते हैं, और जो लेंथ है वो क्या है? DL लिख सकते हैं। ठीक है, तो DQ क्या आएगा? DQ आएगा लैम्डा DL। ठीक है, तो हम इसमें चार्ज की वैल्यूज को निकालना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें निकालना है कि जो ये फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q, ओके, हैविंग द पॉइंट P बिल V, अगर इस पॉइंट पे जो हमें फोर्स निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे वो हमें लिखना होगा। फोर्स ऑन होल सिस्टम, फोर्स ऑन होल सिस्टम के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन DF वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन K Q, फिर क्या है? लैम्डा DL बाई R माइनस R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर Q इंटू R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F वेक्टर हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे? K को बाहर ले लेंगे और लैम्डा को भी बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? KQ इंटीग्रेशन लैम्डा DL R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर Q R माइनस R डैश वेक्टर। ओके, ये तो हमारा फोर्स आ गया। इक्वेशन नंबर इसको दे दें कोई नाम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P इज। P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि आपको पता है। E वेक्टर क्या होता है? F वेक्टर बाई, क्या लिखूं? Q, क्योंकि P पे पॉइंट क्या था? Q था। अभी जो फिगर हमने बनाया था पीछे आप पेज में देख सकते हो जो बनाया है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F क्या है? ये है KQ इंटीग्रेशन लैम्डा DL R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर अपॉन R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर Q और डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो जो बच रहा है वो आपके सामने। क्या लिखेंगे? E वेक्टर इक्वल टू, K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई। राइट साइड में लिख लो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन। कोलंबियन फोर्स जो निकाल रहे थे तो ये आपने लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉन। ये तो हो गई K की वैल्यू। इंटीग्रेशन लैम्डा को निकालना है तो लैम्डा को यहाँ लिख सकती हो। लैम्डा क्या लिख सकते हो? DL R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर अपॉन R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर होल क्यूब। तो ये तुम्हारा, लैम्डा को अंदर रखो या बाहर रखो कोई मतलब नहीं होता, एक जैसे ही है। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है। और किस फॉर्म में है इसकी वैल्यूज?
लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, जहां पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ओके।